Hello, students. Today we are going to learn about a lesson, and the name of the lesson is Combustion and Flame. Now, what is combustion? Combustion वो रिएक्शन है जो कि फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में होती है and it produces lot of energy in the form of heat and light. And also one more thing comes out. So sometimes or most of the times you can say it gives out a flame. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी कंज्यूम होती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो बाहर आती है. दैट्स व्हाई कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट? एक्सो मीन्स आउट, बाहर की तरफ, एंड थर्म मीन्स हीट. So heat which comes out is exotherm, or the reaction is called as exothermic reaction. So, what are the essentials or the factors responsible for combustion? There are three main elements that are required for combustion. First one is fuel. Fuel के बगैर combustion नहीं हो सकता. Like it can be wood, it can be diesel, petrol, paper, coal, anything. Second important thing is oxygen. Oxygen के बगैर भी combustion possible नहीं है. And of course, one major thing that is called as ignition temperature. This is the temperature which is required to initiate and sustain the reactions in combustion. That means ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर वो फ्यूल चलता है. अब अगर आप लकड़ी लें या कागज लें या पेट्रोल लें और तीनों में माचिस से आग लगा लें, तो आपको क्या पता चलेगा कि तीनों एक साथ बर्न हो रहे हैं, तीनों एक साथ जल पड़े हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक का ignition temperature अलग-अलग है. Though all of them are fuel, they are reacting with oxygen also, but still, they will be जलेंगे वो अलग-अलग टाइम पर, क्योंकि तीनों का जो ignition temperature है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. Now there are various types of combustion, like complete combustion, incomplete combustion, spontaneous, rapid, and explosive combustion. Now what is complete combustion? Complete combustion से मतलब है कि जब फ्यूल पूरी तरह से completely burn हो जाता है और उसमें sufficient oxygen होती है उस फ्यूल को जलाने के लिए, and after that a lot of carbon dioxide and water is produced. This type of reaction is called as combustion reaction, complete combustion reaction. जैसे कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जब आप एलपीजी जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो दैट इज अ कंप्लीट कंबशन. और आप ये भी देखते हैं कि उसमें एक ब्लू फ्लेम होती है. ब्लू फ्लेम का मतलब है कि एलपीजी के अंदर जो गैस है उसने 100% ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया एंड इट गेव अ ब्लू फ्लेम which signifies that there is a complete combustion. Second one is incomplete combustion. Incomplete combustion होता है जब somehow there is not enough oxygen for the fuel to completely burn. Say in respect, and in result of that, what happens is carbon dioxide की जगह carbon monoxide produce होती है और एक धुआं सा उसमें होता है, just because it's a incomplete combustion. So burning of coal, you can say it's a incomplete combustion, because आपने देखा होगा bonfire या आप कभी कोयले को जलाते हैं तो जलता है वो, पर जलने के बाद भी उसके पीसेस या ब्लैक एरिया जो है कोल में वो रह जाता है. इसका मतलब ये है कि दैट इज नॉट बीन बर्न टोटलिटी में. सो दिस इज इनकम्प्लीट combustion. देन कम्स स्पॉन्टेनियस combustion. स्पॉन्टेनियस combustion का मतलब होता है कि when the material burns or ignites without any external heat source. जैसे कि अगर आप पोटेशियम को या सोडियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे ही तो ही वो जल जाता है, मतलब एकदम से फायर लग जाती है उसमें. दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस combustion, एकदम से विदाउट एनी डिले. देन रैपिड combustion. रैपिड combustion से मतलब है
This is going to give heat energy, light energy rapidly on quickly combustion. जैसे कि candle. Candle is an example of rapid combustion. इसमें जब आप विक को जलाते हैं तो क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, और साथ में वो विक जो है वो जल्दी से जल भी जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज रैपिड combustion. Last one is explosive combustion. This is a type of combustion in which rapid burning and rapid and release of large amount of energy is there. और जैसे कि क्रैकर्स का जलना, पटाखों का जलना, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव combustion. सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक आइडल फ्यूल क्या होगा. एक आइडल फ्यूल होने के लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं, लाइक इट शुड बी रेडिली अवेलेबल, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अफोर्डेबल, इट शुड बर्न इजीली, और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट लीव लॉट ऑफ रेजिड्यू, मतलब राख नहीं बजनी चाहिए बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई हो, और साथ में वो काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज करता हो व्हेन इट इज बीइंग बर्न. तो अगर किसी चीज़ में ये सारी क्वालिटीज हैं तो उसे हम आइडल फ्यूल मानकर चलते हैं. तो आजकल जैसे ट्रैफिक या मतलब व्हीकल्स के अंदर सीएनजी का इस्तेमाल होता है, तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट आइडल. लेकिन किसी न किसी हर फ्यूल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. वी कांट से दैट एक आइडल फ्यूल है, बट हाँ, जिसमें मैक्सिमम की पॉइंट्स हों उसको आइडल बनाने के लिए, वो आज की डेट में आइडल फ्यूल कहलाएगा. Now let's talk about कैंडल फ्लेम. आपने मोमबत्ती को तो जलाया ही होगा. अगर मोमबत्ती को जला के आपने ध्यान से देखा है तो उसमें 3 अलग-अलग ज़ोन्स बन जाते हैं. सबसे अंदर वाला इनर ज़ोन, मिडिल वाला मिडिल ज़ोन, एंड बाहर वाला आउटर ज़ोन कहलाता है. जो इनर ज़ोन है दैट इज द कूलेस्ट एंड द डार्केस्ट. वो आपको ब्लैक ही कलर का नजर आएगा क्योंकि उसमें वैक्स वेपर्स होते हैं, और वो भी बर्न नहीं हुए होते हैं, अनबर्न्ड होते हैं. वैक्स इज इट्स अ पेट्रोकेमिकल, कार्बन का बना होता है, तो ऑब्वियसली वहां पर आप कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स देख सकते हैं. मिडिल जोन इज अ ल्यूमिनस जोन, बट जनरली दिस इज येलो इन कलर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं वो पार्शियली बर्न होते हैं, पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई देयर इज अ येलो कलर फ्लेम देयर, right? And the outer zone is the hottest zone, and it is the bluest zone, which shows that the carbon particles here are completely burnt, right? आप फिगर में भी देख सकते हैं कि 3 जोन. फर्स्ट फिगर shows that inner zone is a dark zone, इसका कलर काला ही होता है, अराउंड 1000 डिग्रीज सेंटीग्रेड होता है, और अनबर्न वैक्स पेपर्स होते हैं, एंड no such combustion occurs because of lack of oxygen. मिडिल जोन का अगर आप फिगर देखते हो तो उसमें आपको देखो ऑरेंज सा या येलोइश कलर दिखाई देगा, which shows that wax vapors are not completely burned. Partially burned they are just above the inner zone, and wick से थोड़ा सा दूर भी होते हैं. And third one is outer zone. आप फिगर में भी देख सकते हैं कि it is blue color, and the temperature here is 1400 centigrade. ब्लू कलर के आने का मतलब ही होता है कि enough of oxygen is there to burn the fuel, राइट. और ये बिल्कुल बाहर वाले पार्ट में होता है और बहुत गर्म होता है ये वाला हिस्सा. कभी कभी हम खेल में भी ऐसा करते हैं ना कि वी टेक फिंगर इन एंड आउट ऑफ द फ्लेम ऑफ कैंडल. वो ऊपर अगर हम रखें अपने हाथ को तो हाथ जलने का खतरा ज्यादा रहता है, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्म होता है वो हिस्सा, क्योंकि कंप्लीटली बर्न हो रहा है. और अगर आप डार्क जोन में से, मतलब इनर मोस्ट जोन में से अगर आप अपनी उंगली को निकालते हैं, प्लीज डोंट डू इट, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, तो वहां पर आपको ज्यादा गर्म
नहीं महसूस होगा, बिकॉज वो जगह बर्न हो ही नहीं रही है पूरी तरह। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू इट, इट इज जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। और उसके साथ साथ फ्लेम की एक शेप भी होती है, ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर जैसे ट्राइंगल जैसी शेप होती है। उसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि नॉट ट्राइंगल आई शुड से, इट इज अ यू नो एक वाटर ड्रॉप या टीयर ड्रॉप की तरह का शेप होता है। एंड इट अटेन्स दिस काइंड ऑफ अ शेप बिकॉज वैक्स जो है वो जब मेल्ट होती है तो इट there are a lot of wax vapors comes out, और वैक्स वेपर्स चूंकि जलते हैं और जली हुई चीज या हीटेड चीज जो होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है। और जब वो वैक्स वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं तो फिर वो उस फ्लेम को भी अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज गॉट एन elongated teardrop kind of a shape। ना अगर हम इसको कंपेयर करें कि गैस का बर्नर और कैंडल का फ्लेम, क्या दोनों एक तरह से जलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि गैस के बर्नर के अंदर जो देयर आर मेनी मेनी होल्स आर देयर, और वहां से equal amount of fuel is coming out at the same time. It is reacting with oxygen in a very nice manner, मतलब बहुत अच्छे से ऑक्सीजन उसको मिल रहा होता है। तो the flow of gas and the air brings out a very very good properly burning flame on the gas appliance, and it is of again blue color because पूरी तरह से वो अच्छे से जल रहा है। And sometimes tiny tip this येलोइश कलर भी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कहीं अनबर्न रह गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि गैस की फ्लेम जो है वो ब्लू ही होती है। एंड इट इज क्वाइट सेफ, एफिशिएंट एंड you can say it's a complete combustion of the fuel। Please read your lesson when you see this video. Simultaneously, you should read the lesson also. And if any problem, any questions, you can comment on or you can visit the site. Thank you so much.